من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم کی قسط نمبر 58 لے کر آپ کا میزبان سخاوت حسین صدرالوی حاضر خدمت ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ بڑا عرصہ ہو گیا کہ برکات اسم اعظم نہیں ہو سکا، تو کل اور آج دونوں دن 57 اور 58 پروگرام ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں، اور میں آپ تمام حضرات و خواتین کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا ہے ان چیزوں پر جو کہ انہوں نے خود اسم اعظم کی برکات کو دیکھا۔ ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ہفتے یا 2 ہفتوں میں ہونے والے ایسے معجزات و کرامات پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے انکریج کا سبب بنے، ہمارے آڈینس کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے وہ اپلائی کرنے کا ذریعہ بنے، ان کے لیے بینیفیشل ہوں اور ان کو فائدہ ہو۔ آئیے میں قبل اس کے کہ آپ کال کریں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں، کچھ کل کی تھی۔ نمبر آپ نوٹ کر لیں، نیچے لکھ بھی دیا جائے 718-675-6987۔ آپ کال کر کے ہمیں اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صراط مستقیم اور برکات اسم اعظم کا اوپن فورم ہوتا ہے، جیسے ہی ہم پروگرام شروع کریں آپ اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ وغیرہ کا جو درس ہے یا باقی درس اخلاق ہے یا نسل بچاؤ مہم ہے، اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ آپ سنے دیکھیں اور بعد میں کال کریں، مگر ان 2 پروگرام میں ہم آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں رکھتے۔ محترم ناظرین و ناظرات، اپنے دوستوں کو بھی مطلع کر دیجئے کہ المہدی ٹی وی پر پروگرام ہو رہا ہے، اور کوشش ہوگی کل بھی اگر ہم نکاح پڑھنے کے لیے دور جانا ہے، اگر ہم میک کر سکے تو کل بھی مغرب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ سیٹرڈے کو بالکل حاضری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ 2 متضاد ڈائریکشن میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں نکاح پڑھنا ہے۔ سیٹرڈے کو ٹوٹل آف رہے گا، البتہ سنڈے کو بھرپور حاضری ہوگی۔ پھر منڈے سے ہم باہر چلے جائیں گے، پھر آپ کی خدمت میں ہماری حاضری سیٹرڈے 7 جون کو ہوگی۔ کربلائے معلی روانگی سے قبل ایک پروگرام کر کے انشاءاللہ جہاز پہ سوار ہوں گے۔ تھوڑی سی غرضی رہے گی اس میں، دیگر علماء کرام انشاءاللہ المہدی ٹی وی کو چلائیں گے۔ آپ شام کے وقت مہربانی فرما کے 6 سے 9 بجے آپ ذرا پلیز المہدی ٹی وی کو آن کر لیا کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی لائیو پروگرام 6 سے 9، میکسیمم 6:30 سے، بعض اوقات 6:30 بج جاتے ہیں، تو 6 سے 6:30 سے لیٹ نہیں ہوگا مغرب تک۔ اب یہ لائیو پروگرام دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ کل بھی کوشش ہوگی، یا میں کروں گا یا کوئی میرے عزیز شاگرد یا دوست کریں گے کل انشاءاللہ۔ اور سیٹرڈے کو بھی شام کو پروگرام آئے گا 6:30 بجے، میں نہیں رہوں گا مگر پروگرام اور آئیں گا۔ اور سنڈے تو پتہ ہے کہ صبح سے شروع ہوں گے، سارا دن رہے گا پروگرام انشاءاللہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج کا ہمارا پروگرام زیادہ طویل نہیں ہوگا کیونکہ مغرب جلدی ہو جاتی ہے، مگر جتنا کل ہوا تھا تقریباً 35-40 منٹ سے زیادہ یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ آج بھی میں نے چاہا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر آپ کے سوالوں کا جواب۔ ایک چیز جو میں آج بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بہت ہی ضروری یہ بات ہے، آج یہ کال آئی تھی اور اتفاق سے المہدی سینٹر میں حافظ مبشر نذیر اور آغا سجاد علی شاہ جعفری یہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ حاجی سلامت علی بھی ڈائریکٹر پروگرام وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
उन्होंने ये देखा कि प्रोग्राम से पहले ये कॉल आई, और कॉल ये थी, आप ये मुलादा फरमा के खुश होंगे, एक सिस्टर ने मुझे कॉल की कि जिनको मैंने बताया था, जिनके घर में गया था, अटलांटिक सिटी में वो रहते हैं, अटलांटिक सिटी के करीब कोई टाउनशिप है, शायद कैलोवे, GALLOWAY, न्यू जर्सी। और उन्होंने मुझसे कहा था, उनके बल्कि हस्बैंड ने मुझसे कहा था, ये मौजूद थी खुद, कि एक रिश्ता वो चाहते थे अपने किसी रिश्तेदार का, और वो रिश्तेदार देने को तैयार न थे। मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैं आपके लिए वजीफा करूंगा, इंशाअल्लाह वो खुद रिश्ता देंगे। कल उन बहन की कॉल आई थी, आज भी आई थी, और आज उनकी बेटी ने भी कॉल की। गोया बहन बेटी दोनों की कॉल्स आई। उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि वो रिश्ता बिहम्दिल्लाह खुद लेकर आए हैं, और हमें बार बार कॉल कर रहे हैं, बल्कि मिन्नत समाजत तक आ गए हैं कि हमारा रिश्ता जरूर लें। ये इसमें आजम की बरकत है मेरे भाई बहनों। मैंने उनके लिए ये इसमें आजम पढ़ा था, और अल्लाह के फजल व करम से उनका काम हो गया। बड़ी ईद पर उन्होंने डेट रख ली है। ये एक बरकत है जो मैं आज के प्रोग्राम में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप मेरा कॉलम उर्दू टाइम्स में नहीं पढ़ते तो उर्दू टाइम्स US.com पे प्लीज जाकर मेरा कॉलम पढ़ लिया करें, या आप हमें अपना ईमेल बता दें तो हम आपको कॉलम ईमेल कर दिया करेंगे। हर हफ्ते मैं कॉलम लिखता हूं, और इंशाल्लाह आइंदा का जो कॉलम होगा 305 उसमें इंशाल्लाह ये दर्ज किया जाएगा। उस कॉलम से बड़ा फायदा होगा आपका। काफी मेरे भाई बहनों ने, कल 2 कॉलें आई थी, 2 हमारे भाई बहनों ने कॉलें की, और उन्होंने बताया कि कॉलम से अमल करके पढ़ के आपके कॉलम से हमारे काम हो गए। दोनों ने आज थोड़ा थोड़ा हदिया हमें भिजवा दिया है अल महदी टीवी के। इसी तरीके से मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, मैं आपकी खिदमत आलिया में एक बात अर्ज करना जरूरी समझता हूँ, और इसको बिल्कुल पल्ले बांध लीजिए। मैं अल महदी टीवी से या उर्दू टाइम्स से या गुफ्तगू से या फोन के जरिए अपनी मार्केटिंग नहीं करता हूँ। यह कुरान मजीद गवाह है, और मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा गवाह है, और अल्लाह की ज़ात गवाह है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैंने जो थोड़ी सी तालीम, बिल्कुल बहुत ही छोटा अदना हकीर फकीर गुनाहगार मिस्कीन सा तालिब इल्म हूँ मकतब अहले बैत का, जो मैंने अपने असातिज़ा से नजफ क़ुम पाकिस्तान में सीखा है, मैं वो अपने बहन भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं दयानतदारी के साथ। न कोई मैं पीर फकीर हूं, न कोई मुर्शिद हूं, न मेरे हाथ में कोई जिन है, न कोई मुवक्किल है। मैंने कभी भी अपनी मार्केटिंग नहीं की है। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, ये मैंने इसलिए कहा कि बाज़ लोग ये समझते हैं शायद डॉक्टर साहब ने कोई धंधा शुरू कर रखा है। अल्लाह की ज़ात गवाह है, कोई धंधा बंदा नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मैं अपने लेक्चर के जरिए कमाता हूँ, अल्लाह के फजल करम से। मैं अपने टैलेंट से कमाता हूँ, मैंने मैक्सिमम तालीम हासिल की है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह की बड़ी इनायत है मेरे ऊपर। मुझे आपके पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि मैं आपसे पैसे लूँगा तब मेरे बिल्स जाएंगे, क़त्अन मुझे ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आपके दिए गए पैसों से मैं यतीम खाना चलाता हूँ, आपके दिए हुए पैसों से मैं मस्जिद चलाता हूँ, इमाम बारगाह चलाता हूँ, किताबें शाया करता हूँ, गरीबों मिस्कीनों को देता हूँ, कन्वर्टेड को देता हूँ। कल भी कन्वर्टेड आ रहे हैं एक साहब जो मुझसे पैसे लेने के लिए, जो बड़ा अरसा मुझसे पैसे लेते थे मगर इत्तेफाक से उन्होंने अब के लेने छोड़ दिए थे, तो कल आ रहे हैं उन्होंने। इसी तरीके मैंने कन्वर्ट किया है बहुत सारे लोगों को, जिनमें प्रीस्ट भी हैं, जिनमें असिस्टेंट रबाइस तक हैं, दीगर मज़ाहिब के लीडर्स तक हैं। ज़ाहिर कन्वर्ट किया है तो उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं।
یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ مجھے ڈیلیویئر میں نے خطاب کیا اس سنڈے کو، اور میں جب ہوٹل جا رہا تھا شیرٹن میں میرا قیام تھا تو مجھے ایک سسٹر نے گالیاں دی فون پر، آئی ڈی بلاک کر کے. ظاہر ہے اتنی ہمت تو ان میں نہیں، اتنی جرت تو ان میں نہیں ہے کہ وہ آئی ڈی ظاہر کر کے اپنا فون بتا کے گالیاں دیتی، تو ان کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا. میں وائلنس کا بالکل قائل نہیں ہوں، مگر میرے پاس دو راستے ضرور ہیں. پہلا راستہ میں نے کبھی اختیار نہیں کیا آج تک، اور وہ ہے گورنمنٹ کا راستہ. میں ایک دو دفعہ سوچا تھا مگر میں نے نہیں کیا، اللہ کی ذات گواہ ہے. مگر میرے پاس دوسرا راستہ ضرور ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں بد دعا بھی نہیں کرتا، استغاثہ کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں ان کو پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ. اور وہ میں نے کر بھی دیا، اور انشاءاللہ ان کو پتہ چل بھی چکا ہوگا، اگرچہ نام نہ ظاہر کریں، آئی ڈی بلاک نہ بھی کریں. ویسے میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ میں آئی ڈی بلاک والوں کا نمبر نکال لیتا ہوں. آئندہ جو کال کریں میرے بھائی بہن ذرا سوچ سمجھ کے کریں. ٹرائل بیسس پہ بھی آپ کرنا چاہیں تو کر کے دیکھ لیجئے. آپ کر کے دیکھیے کہ میں ابھی دوبارہ کال کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے نمبر بتا دیں، میں آپ کو نمبر بتا دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. خیر، یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے ان بہن کے کال کرنے سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہیں. ظاہر ہے حاسد کالز بھی کریں گے، حاسد جھگڑے بھی کریں گے، حاسد پروپیگنڈے بھی کریں گے. میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہے. باقی دور والوں کو کیا بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے لالچی ہو گئے. میں کوئی لالچی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ لالچیوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھے. میں اگر تھوڑا بہت پیسہ لیتا ہوں، ضرور لیتا ہوں، تو میں راہ خدا کے لیے لیتا ہوں، یا میں ان غریبوں کے لیے لیتا ہوں جو آپ کے لیے پڑھائی کرتے ہیں. مجھے بھی دیا ہے میرے بھائی بہنوں نے پیسہ الحمدللہ. اگر خوشی سے کوئی دیتا ہے تو میں بھی اس میں کوئی قباحت نہیں محسوس کرتا ہوں. میں اس پیسے کو لے کے راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں. ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال پوچھنا ہے. ہاں جی. یہ بتائیں شعبان جو ہے اس میں آخر میں روزے شخص ہوتے ہیں، شعبان کے 3 آخری جو روزے ہیں ان کو ملا دینا ہے رمضان کے ساتھ، یہ سنت رسول ہے. اور جو شعبان کے آخری 3 روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 30 کا ثواب دے گا پورے شعبان کا. جی ملک جی، اور فرمائیں. اور یہ بسم اللہ. ملک الطاف حسین ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ہمارے یہ بھائی ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے مکمل اور یہ واپس آ جائیں. یہ میرے رومیٹ بھی ہیں اتفاق سے، کافی عرصے سے یہ صاحب فراش ہیں، نرسنگ ہوم میں ہیں. اللہ تعالیٰ شعبان کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں ملک صاحب کو واپس البیدی سینٹر لے آئے. شکریہ جناب ملک صاحب. یہ ملک صاحب نے کال کی تھی مجھے، پہلی کال کی تھی تو وہ میں نے کہا پروگرام ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا میں دوبارہ کال کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ بھی اگر پوچھنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 718-675-6987 پہ. تکلفاً بالکل کال نہ کریں. کال اگر ضرورت ہے تو کریں، تکلفاً کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بڑی مہربانی، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تکلف والی کالیں سنی جائیں. محترم ناظرین و ناظرات، یہ جو پروگرام میں نے شروع کیا بیسیکلی برکات اسم اعظم کا، اور میں نے امریکہ میں سن 1990 سے یہ کام شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اس وقت سن 2015 ہے. تو 90 سے میں اس کام کو کر رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے اس دوران اپنے بھائی بہنوں کی بڑی خدمت کی ہے. 25 سال پلس میں نے ہزاروں بھائی بہنوں کی خدمت کی ہے. بعض اوقات جب گالیاں والیاں لوگ دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں یا پراپیگنڈے کرتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں، مگر میں کہتا ہوں جن غریبوں کی مدد ہو رہی ہے ان کی مدد چھوڑنی نہیں چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، میں میاں منظور بول رہا ہوں. جی میاں صاحب. یہ بتائیں کہ 15 شعبان اور اس کے اعمال بتائیں. 15 شعبان کے بتا چکے ہیں پچھلے پروگرام میں، اعمال بتا دیے ہیں. 6 رکعت نماز بھی ہے، 4 رکعت بھی ہے، 2 رکعت بھی ہے. 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے والی 2 رکعت ہے. 10 مرتبہ پڑھنے والی الحمدللہ 10 رکعت ہے. سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنے والی بھی نماز بتا چکے ہیں.
اور نماز امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بتا چکے ہیں، روزے رکھنے کا ثواب بھی بتا چکے ہیں، عریضہ بھی بتا چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میاں منظور صاحب آپ نے ہمیں کال کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. میاں صاحب نے میرے خیال میں شاید یہ سمجھا ہے کہ وہی پروگرام دوبارہ کنٹینیو ہے، یعنی نیکسٹ پورشن ہے. کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو سلامت رکھے اور تمام دیکھنے والوں کو. بعض لوگ بڑا تکلف کرتے ہیں. مجھے ایک بھائی نے کہا کہ میں کال نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے اسٹینڈرڈ کا خیال رکھنا چاہتا ہوں. ایسے لوگ ہمیں کال نہ کریں جن کا اسٹینڈرڈ دین کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا میں وہ جسے چاہیں کالے کرتے رہیں، اور دنیا میں چاہے تو گالیاں دینے والوں کو بھی کالے کریں. بہرحال ان کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو ہمارا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے. ہمیں دیندار لوگ کال کریں یا وہ بے دین کال کریں جو دیندار بننا چاہتے ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ بے دین حرام خور لوگ ہمیں کالیں کریں، یا جو نماز نہیں پڑھتے نہ کریں. بے شک اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نماز تو کال کر لیں. یہ اس طرح ہمارا دل دکھتا ہے کہ جی ہم اس لیے کال نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. اسٹینڈرڈ دین کے ساتھ قائم ہوتا ہے میرے بھائی، اسٹینڈرڈ دنیا کے ساتھ قائم نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑے اسٹینڈرڈ کی بات ہے. میں ان غریبوں مسکینوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو اور ان کے سب کے کام ہو رہے ہیں. خیر غریب سارے نہیں، بڑے بڑے امیر بھی کالیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. ملینر میری بہنیں بھی کالیں کرتی ہیں، ملینر میرے بھائی بھی کالیں کرتے ہیں. ابھی جس بہن نے مجھے الحمدللہ ٹکٹ لے کے دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تقریباً $2595 کا ٹکٹ لے کے دیا ہے. یہ بہن بہت امیر بہن ہے، یہ غریب نہیں ہے یہ کوئی بہن. انہوں نے اس سے پہلے مجھے $4500 مسجد کے لیے بھی دیا ہے. انہوں نے مجھے $2500 یتیم خانے کے لیے بھی دیا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ ان کا کام ہو جائے تو یہ مجھے $1,00,000 دے گی مسجد کے لیے. میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں روضے پہ جا کے کہوں گا کہ یا اللہ میرے ان بھائی بہنوں کے کام کر امام حسین کے صدقے میں کہ جو $1,00,000 مسجد کو دینے کو تیار ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نہیں دے رہے میں ان کے لیے نعوذ باللہ دعا نہیں کروں گا، مگر آپ یہ اسٹینڈرڈ کی بات نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم. جی سر. علیکم السلام. جی میں جی مبارک بول رہا ہوں کنیکٹیکٹ سے. جی سر. کہ میں آپ کو جانتا ہوں بڑا پیچھے، آپ کے والد صاحب علامہ کو بھی جانتا ہوں، وہ ہمارے چیچا بطری کے طرف میں پروفیسر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی میں الفت کو بھی جانتا ہوں، آپ کے بھائی کو، وہ ہماری امام بار کا پتی بہرحال میں پڑھنے آتے تھے. جی 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 میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھیے. میرا بیٹا ہے حسنین علی جی جی، اس کو نے وہ شادی کو نہیں مانتا. کوئی بس کوئی کریں، آپ دعا کریں، کوئی ورد کریں اور وہ شادی کو مان جائے. کہ میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، جب پاکستان میں تھے آتے تھے سارا آپ کو مجھے، میں آپ کو جانتا ہوں. کوئی دعا کریں کوئی شادی کو مان جائے. میں آپ اللہ تعالیٰ صاحب کو عذر دے گا جی، بہت آپ کی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مبارک نے ہمیں کال کی ہے کنیکٹیکٹ سے. ہاں جی کنیکٹیکٹ سے. میں پیچھے پاکستان سے چچا وطنی سے ہوں، گاؤں کے رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے. ہم مڈل ٹاؤن میں آتے ہیں، امام بارگاہ میں سارا مجلس جب آتے ہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مبارک آپ دعا کرنا وہ شادی کو مان جائے. بہت میں انشاءاللہ دعا کروں گا. حسنین علی شادی کے لیے مان جائے گا، بالکل فکر نہ کریں. بڑی مہربانی. میں حاضر ہوں بالکل. میں دعا کرتا ہوں ابھی بھی اور پھر بھی کروں گا. ابھی کربلا بھی جا رہا ہوں 7 جون کو، وہاں بھی دعا کروں گا. یہ مان جائے گا، بالکل اطمینان رکھیں، مان جائے گا. بہت شکریہ. مبارک آپ نے کال کی. چیچا وطنی سے ان کا تعلق ہے، اور میرے بھی چیچا وطنی میں الحمدللہ جوانی کے کچھ سال گزرے ہیں. میں جہاں سے ہی جانتا ہوں. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. ہمارے گھر میں الفت امام بارگاہ میں آتا تھا، وہ تو مجلس سے پڑھتا تھا. ہاں مولانا الفت حسین وہ میرے بھائی ہیں چھوٹے. جی جی وہیں پر پیش نماز رہے ہیں بڑا عرصہ. علامہ صاحب جی بڑی مہربانی. جی جی ہاں جی ہاں جی. چلو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دعا کریں گے، ڈٹ کے دعا کریں گے. یہ مبارک ہیں چیچا وطنی سے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے بھی جانتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی مولانا الفت حسین کو، میرے والد صاحب مولانا عطا اللہ کو. انہوں نے کہا میں آپ کے والد علامہ کو بھی جانتا ہوں. تو میرے باپ نے وہاں بڑی زندگی بڑی خدمت کی ہے، اور ماشاءاللہ اکثر لوگ ان کے بیٹے بیٹیاں بنے ہوئے تھے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چیچا وطنی میں ہم نے دین کی، میرے بھائی نے بھی، میں نے بھی بڑی خدمت کی جتنی ہو سکی. مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں ابھی بہت کم ہے.
اللہ ताला हमें और जिंदगी दे, सेहत दे कि हम भाई बहनों की खिदमत करें। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें। 7186756987। तो मुबारक की कॉल से मुझे एनकरेजमेंट भी मिली कि वो हमें जानते हैं कि हम चीचावतनी से भी खिदमत करते हुए आए हैं। चीचावतनी में मैं जब था तो अभी मेरी दाढ़ी नहीं आई थी पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप समझ रहे कि 37 साल ये पुरानी बात कर रहे हैं, 37 साल पुरानी बात ये कर रहे हैं। तो एक कॉल ले लेते हैं, फिर मैं कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जरा अपनी टीवी की आवाज कम कर लें तो फिर हम आपकी बात सुन पाएंगे, इधर से भी मैनेज कर लें। हेलो साकिब जी। कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं काशिफ बोल रहा हूँ ब्रुकलिन से। काशिफ जी बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा था कोई मुझे इसमें इसम बताएं जो मेरे बाहर से पढ़ता रहूं। आपके लिए काशिफ इसम जो है अभी मैं बता देता हूँ, कुरान से तफाउल करके मैं बता देता हूँ आपको। आपके लिए जो अल्लाह का पाक नाम और जुमला बल्कि निकल रहा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, 1000 मरतबा डेली पढ़ें, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और अलमैदी टीवी से ताउन भी करें, आपका बहुत शुक्रिया। मेंबरशिप ले लें, $1 पर डे की मेंबरशिप है, $30 महीने के। बहुत शुक्रिया। काशिफ ने हमें कॉल की है ब्रुकलिन से, जहाँ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। हजरात व ख़वातीन, आपसे गुजारिश करूँगा, शाबान का महीना है, इस दफ़ा हम बहुत बिहाइंड हैं। मैंने $1000 दे दिया है जो हम जादू को देते हैं, $1500 अभी बाकी है। कोई बिरादर मोमिन, कोई खार मोमिना आगे आ जाए, $1500 जमा करा दें, हम अकाउंट नंबर दे देंगे। मैं क्योंकि ज़्यादातर अपनी ज़ाती कमाई से देता हूँ और इस दफ़ा मैं कमाई नहीं कर सका, ज़्यादा बाहर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात ताउन करें थोड़ा सा हमारे साथ, ताकि हम ये $1500 भी दे सकें। ये मई के महीने का $1500 हमारा बाकी है और जून में फिर हमें देना है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लें। मोहतरम नाज़रीन व हज़रात, हमारा ये प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म का जारी उसारी है। चंद मिनट और ये प्रोग्राम जारी रहेगा और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने कुछ गुजारिशात आपके लिए करनी थी, वो रह ही गई। एक गुजारिश जो मैं करना चाह रहा हूँ, ज़रा वो सुन लीजिए। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर सखावत हुसैन। अच्छा, हमारे अर्ज़ है आपके वैसा दे लिए दुआ करने, बच्चों के लिए बीमार हैं, हम भी बीमार हैं। इंशाल्लाह दुआ करेंगे बहन, अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी, आपको भी, सब रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को शिफा कामिल ये दुआ करानी जरूर, जरूर दुआ करें। शुक्रिया बहन, कॉल करने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहन ने कॉल की है, मैं दुआ करता हूँ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सदक़े में मेरी बहन को अल्लाह ताला शिफा दे और इनके दीगर भी जो रिश्तेदार हैं जिनके लिए इन्होंने नियत की है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। मैं चट्टा साहब नज़ीर चट्टा की वालदा माहिदा के लिए भी दुआ गो हूँ और अली रिजवी की वालदा, डॉक्टर मोहम्मद रिजवी की वालदा यानी कि हाजी रज़ा शाह, अब्बास रज़ा शाह साहब की ज़ौजा है मोहतरम, अपनी भाभी के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको शिफाया फरमाए। वो साहिब फ़राश है। ज़ाकिरा ज़रीना बानो के लिए भी दुआ करता हूँ, अंजुम रज़ा शाह के लिए भी दुआ करता हूँ, आगा मुख्तार के लिए भी, सईद असगर के लिए भी, हमारे आगा सजाद थोड़े से अली ने, इनके लिए भी, आगा सजाद अली शाह जाफरी, खुदा इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर की वालदा माजिदा ने एक ख़ास दुआ मेरे ज़िम्मे लगाई है, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि उनकी दुआ भी कबूल हो जाए, सेहत भी हो उनको। और भी जितने भाई बहनों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, एक हमारी बहन है बहुत ही मेहरबान, बड़ी नेक सखी और हमारे प्रोजेक्ट की भी बड़ी खिदमत गुजार है, मुनज़्ज़ा खानुम, बाजी मुनज़्ज़ा खानुम के लिए दुआ करता हूँ, उनकी दोनों बेटियों के लिए, उनकी नवासी हूर नईम के लिए अल्लाह ताला उनको शिफा दे। फातिमा अली ने
हमें दुआ के लिए कहा है। नदीम के लिए, नदीम को भी अल्लाह शिफा दे। इसी तरीके से मैं फ़िज़ा के लिए, फ़िज़ा बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ। वो टोरंटो में रहती हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। उनकी मौलूद बच्ची ज़ैनब को भी, रिमशा ज़ैनब को भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इसी तरीके से इमरान मेहदी ने मुझसे कहा था दुआ के लिए, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। अल्लामा फ़रद हुसैन मुसवी साहब ने अपने एक अज़ीज़ के लिए दुआ की के लिए कहा था, अल्लाह ताला उनको भी, उनके अज़ीज़ को शिफा दे। एक हमारे और दोस्त हैं यावर साहब करके, ये इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। यावर साहब बीमार हैं शिकागो में, उन्होंने भी दुआ की दरख्वास्त की थी। मैं राजा हसन रज़ा साहब, प्रोफेसर साहब के बेटे और अपने भतीजे शहजाद हसन के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको आँखों के आर्जे से नजात दे। और मैं अपने बेटे हुसैन रज़ा के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। मेरी वालिदा माहिदा के लिए भी दुआ करता हूँ, जिनकी आँखों की सर्जरी है, उनको भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। मेरी बहन भी कनीज़ फातिमा अलील है, उनके लिए भी दुआ की, आपसे दरख्वास्त करता हूँ दुआ फरमाए। मैं भी दुआ करता हूँ। सैयदा इफ़्फ़त ज़हरा ने भी दुआ के लिए कहा है। एक हमारे राजा नौरोज़ अली हैं, अलबरी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझसे कहा था अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। हमारे मोहसिन शाह साहब, मोहसिन हुसैन शाह साहब जो लाहौर वाले नकवी हैं, उनकी ज़ौजा के लिए भी मैं, मुनीबा के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको भी मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमाए। एक बात और भी बता दूँ, अभी अभी बल्कि कल एक बहन ने मुझे बताया था ज़ाहिरन कि किसी ने उनको बताया कि कोई खातून थी, उनका कैंसर बताया था। जब वो मुझसे बात करके दोबारा गई तो कैंसर ख़त्म हो गया। उन बहन बेटी ने कल जिन्होंने कॉल की थी, अजीब मौजज़े की बात है, उनके लिए मैंने थोड़ा सा वजीफ़ा पढ़ा, लंबा चौड़ा नहीं, टाइम नहीं था। बेहम्दुलिल्लाह उनका कल टेस्ट हुआ और यूट्रस का कैंसर बताया गया था, मगर अल्लाह की ज़ात ने उनको शिफा दी। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। तो अल्लाह ताला ने उनको भी शिफा दे दी। तो माशाअल्लाह मैं अभी ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ ये इख्तिताम पजीर होने वाला है। इसमें मैंने कुछ चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में की, बताया मैंने। कुछ बच्चे वो हैं जो ड्रग्स में लग गए थे, बेहम्दुलिल्लाह उनकी ड्रग्स छुड़वा दी हैं इसमें आज़म के ज़रिए। कुछ ख़वातीन के, एक खातून का शौहर था जो एक गलत चीज़ में पड़ गया था, गलत वेब पेजेस को देखना, गलत औरतों से रब्ता करना। आज उन्होंने कॉल की प्रोग्राम से कोई आधा घंटा पहले कि उनका मियाँ तौबा ताइब हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से कल मैंने बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक सिस्टर के काफ़ी पैसे, पासपोर्ट, आईडी वगैरह सब गुम हो गए थे, वो उनको मिल गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की वजह से। इसी तरीके से एक साहब ने कहा था मेरी बेटी के यहाँ औलाद हो रही है, दुआ करें बेटा हो जाए। आज उन्होंने भी कॉल की कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों ने बता दिया है कि बेटा होगा। एक कॉल आज मुझे दिल्ली से आई थी, मोहम्मद अब्बास साहब की। उन्होंने मुझसे एक वजीफा पूछा था मुहर्रम में, मैनचेस्टर में, उनका काम भी हो गया है माशाल्लाह। इसमें आज़म की वजह से बड़े लोगों के काम हो रहे हैं। ये भी सुन लीजिए कि किताबें, 4 किताबें छप रही हैं। हाफिज मुबश्शिर नज़ीर के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने प्रूफ रीडिंग की है और जो इन कम्युनिकेशंस को बाहर भेज रहे हैं, बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उनको सेहत से रखे और रिज़्क़ व माल में बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम। चलिए, मासूम बच्चे हैं माशाअल्लाह, वो भी ज्वाइन हो रहे हैं बरक़ात इसमें आज़म में। दुआ करता हूँ इसमें आज़म के सदक़े में इन मासूम बच्चों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तूले हयात दे। तमाम मेरे बहन भाइयों को अल्लाह सेहत दे, रिज़्क़ व माल में बरकत दे। उनकी औलादों को, बेटियों को, बेटों को अल्लाह राह रास्त पे रखे। बेटियों के रिश्ते हो जाएं, बेटों के रिश्ते हो जाएं, बेटियां बेटे अच्छी तालीम हासिल करें। जो बीमार हैं उनको शिफा हो, जिनके नाजायज़ मुक़द्दमात दर्ज हैं अल्लाह ताला उनके मुक़द्दमात से उन्हें नजात अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज का हमारा ये प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिव है बरक़ात इसमें आज़म नंबर
58 इसमें हमने कुछ आपकी खिदमत में मारूजात पेश की हैं, जो इन चंद दिनों में काफ़ी सारे काम हो गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर एक मैं इशारे में एक बात बताऊंगा, मैं इसकी डिटेल नहीं बता सकता हूँ। एक बेटी ने मुझे कॉल की थी और उसने किसी रियासत से मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी फला जगह हो जाए, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे। मैंने उस बेटी से कहा कि मैं इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं ये मदद कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपके दिमाग को मोड़ दे। अजीब मौजज़ा हुआ कि उस बच्ची ने मुझे कॉल की कि अंकल मैंने शादी कर ली है, मगर वहीं की है जहाँ मेरे माँ बाप चाहते थे। आपसे बात करने के एक दिन के बाद मेरे अंदर बड़ा इनकलाब आ गया, पता नहीं क्या हो गया कि मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया। मेरे पास एक वजीफ़ा है, आपको बता रहा हूँ, जिनकी बच्चियाँ या जिनके बच्चे गलत रास्तों पे चल चुके हैं, चल रहे हैं या चलने का ख़तरा है, वो उनकी बात नहीं मान रहे, वो गलत जगहों पे शादियाँ करने के लिए बस जिद हैं, 24 घंटे बल्कि उससे भी कम के अमल में उनके बच्चों बच्चियों को बचाया जा सकता है। थोड़ा सा राह खुदा में खर्च कर दीजिएगा। बहुत सारे मेरे भाई बहन खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरी बहन ने, अल्लाह उनको जज़ा दे, मैं आज बड़ा खुश हूँ। मेरे पास गुंजाइश नहीं थी तो मैंने कल गिव अप कर दिया था कि करबला नहीं जाऊँगा, और उन सिस्टर ने पूछा कि व्हेन यू आर गोइंग करबला, आई सेड आई एम गिविंग अप बिकॉज आई डू नॉट हैव मनी फॉर टिकट। उस बहन ने देखिए आज मुझे टिकट खरीद करके दे दिया। ये $2600 कुछ नहीं है, $2595। इंशाल्लाह उनके लिए ये 25 लाख बनेगा अल्लाह के सदके से। मैं अल्लाह के करम से और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके से, ये सुन्नी बहन है, मुझे भेज रही है। यकीनन एक शिया भाई भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा खर्चा मुझे वो देंगे इंशाल्लाह, आज उम्मीद है वो भी दे देंगे। तो देखिए जो राय खुदा में खर्च करते हैं अल्लाह ताला उन्हें देता है, ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है, अगरचे मैं गारंटी तो कुछ नहीं देता हूँ, गारंटी मैंने कभी नहीं दी, मगर ये ज़रूर है मैंने बेहम्दुलिल्लाह 99% जिनको कह दिया है कि काम हो जाएगा, उनका काम हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने घरों में टीवी के जो रिमोट हैं वो गुम कर दिए हैं, तो वो हमारा प्रोग्राम जादू पे नहीं देख रहे। उनमें से एक साकिब भी हैं, अभी उनकी कॉल है साकिब मियाँ की, इनकी वालदा ने शिकायत की है कि इन्होंने गुम कर दिया है रिमोट। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिमोट लेके देंगे ताकि सब घर वाले प्रोग्राम देखें और कॉल करें। साकिब मियाँ कुछ कहना चाहोगे? मैं टीवी पे लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ। वसलाम, लाइव प्रोग्राम है टीवी पे, अलमहदी टीवी पे लाइव प्रोग्राम है, कुछ कहना चाहोगे? अभी याद नहीं, इतना बताओ कि आपका जो सीजर का अटैक था वो खत्म हुआ है ना दुआ से कि नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये हमारे साकिब मियाँ हैं, इनको अटैक होता था सीजर का, इनसे आप पूछ लें, ये लाइन पे इत्तेफाक से मेरे पर्सनल फोन पे पर्सनल कॉल की है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके लिए वजीफा किया था, इनका सीजर का अटैक खत्म हो गया था। शुक्रिया बेटा, बाद में बात कर लेना। देखिए आपको मैं हजारों मिसालें दे सकता हूँ, हजारों। मेरी आदत नहीं है अपनी मार्केटिंग करने की। मैं अब किताब लिख रहा हूँ इंशाअल्लाह, मुजर्रबात सखावत हुसैन, मुजर्रबात के जो मुजर्रबात हुए हैं वो मैं लिख रहा हूँ। कैंसर ठीक हुआ है, ब्रेन हेमरेज ठीक हुआ है, हार्ट अटैक खत्म हो गया, बगैर सर्जरी के लोगों की आर्टरीज खुल गई, मसाने में से पथरी निकल गई, पित्ते में से पथरी निकल गई, जो पागल हो चुके थे वो बिल्कुल राह रास्त पे आ गए, जो फकीर हो गए थे, भीख मांगने तक आ गए थे, वो मिलियनर बन गए, जिनकी तलाकें हो रही थी उनमें मोहब्बत हो गई, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके रिश्ते हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। हजारों चीजें किताब लिख रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से न जिंदगी में झूठ बोला है न झूठ लिखा है। हजारों की मदद की है इन 25-26 सालों के अंदर अमेरिका में, और 10-12 साल से पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, अबूजैबी में, दुबई में, शाम में, जहां जहां भी रहा हूं, लंदन में, मैनचेस्टर में, यूरोप में, हॉलैंड में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा का लाख लाख शुक्र है, इसको बिजनेस का जरिया नहीं बनाया, वरना मुझे आप जैसे भाई बहनों से $1500 मांगने न पड़ते जादू का बिल देने के लिए। ये दलील है इस बात की कि मैंने कभी इसको बिजनेस नहीं बनाया है। आज भी मजदूरी करता हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुझे आखिरी लम्हे तक इसी तरह सेहतमंद रखे, मैं अपनी मजदूरी करके खाऊं, मैं किसी की फेवर ना खाऊं। बाकी जाहिर है हासिद तो नबी के भी रहे हैं, इमामों के भी रहे हैं, हमारे भी हासिद हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन
कहते हैं कि आपका हमने बाइकाट किया था, हमें इसलिए भी आपसे हसद है कि हमारे पैसा न देने के बावजूद आप दुनिया को पैसा दे रहे हैं, आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आपका टीवी भी चल रहा है, आपकी मस्जिदें भी चल रही हैं, आपके इमाम बारगाह भी चल रहे हैं, आगे भी बनाते जा रहे हैं, यतीम खाना भी चल रहा है, कन्वर्टेड को भी दे रहे हैं, गरीब मिस्कीन फ़कीर को भी देते हैं, सैयदादियों को कपड़े लेके देते हैं, सैयद बच्चों को पाल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, शादियाँ करा रहे हैं बच्चियों की, सैयदादियों की। ये पैसा आपके पास कहाँ से आता है? ये हाजा मिन फजले रब्बी, अल्लाह के फजल से आता है। मैं दयानतदारी से जो कुछ मैंने पढ़ा था उसको मैं आगे बयान कर रहा हूँ, न झूठ बोलता हूँ, न बदकिरदारी बदअमली मेरे दामन में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है, आज बल्कि मुझे अफसोस करना पड़ रहा है कि एक सिस्टर की मुझे आज कॉल आई थी, बेचारी रो रही थी। ये लोग गवाह हैं, यहाँ जो बैठे हुए हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो के अंदर, ये गवाह है इस बात के कि मैंने उसने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं और मैं सैयदादी हूँ और मैं शेल्टर से बोल रही हूँ, मेरा शौहर फौत हो गया, कुछ छोड़ के नहीं गया, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं किसी का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ और बाई चांस चाय लेने में मेरी दोस्त आई थी तो मैंने स्टोर पे पड़ा हुआ अखबार देखकर आपको कॉल कर ली है। मेरे लिए दुआ करें, मुझे जॉब मिल जाए कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं जो जहाँ रह रही हूँ किसी गैर के शेल्टर के अंदर मैं निकल जाऊँ। आज मैंने तहिया किया है, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा, आज की डेट अगले साल तक एक शेल्टर मैं कायम कर चुका हूँगा अल्लाह के फजलो करम से। कोई तामुन करे या न करे, जिस तरह यतीम खाना चलाया है, लाहौर में मस्जिद चलाई है, लाहौर में मदरसा चला लिया है, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट चला लिए हैं, इंशाअल्लाह चलाएंगे, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह के फजलो करम से, आपके तामुन से, मोहम्मद व आले मोहम्मद की इनायत से हमारा कारवान दीनदारी का चलता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस आज यहीं पर मैं प्रोग्राम नंबर 58 को बरकात इस्म आज़म को इख्तिताम पजीर करता हूँ। कोई भी मदद मेरी चाहिए हो, कैंसर हो, ब्रेन हेमरेज हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, दिमागी बीमारी हो, कुछ बीमारियों के तो नाम भी बड़ा मुश्किल से नाम है, वो हो, ऑटिज्म हो, पार्किंसन हो, इस किस्म की जो बीमारियां हैं अल्लाह के फजल करम से वो ख़त्म हो जाएंगी। फ़क्र फाका हो, मुकदमा चल रहा हो, नाजायज़ मुकदमा हो, शर्र हासिदीन हो, जादू हो, जिन हो, हमलात शैतान हो, औलाद नमाज न पढ़ती हो, शराब पीती हो, लाइफ पार्टनर शराब पीता हो, बच्चे ड्रग में लग गए हो, वगैरह 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 वगैरह, आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपकी खिदमत करूंगा। आप थोड़ी सी दीन की खिदमत कर दें, थोड़ा सदका खैरात दे दें, अलमहदी टीवी को दे दें, अलमहदी सेंटर को दे दें, अल कुरान सेंटर को दे दें, अलमहदी सेमिनरी को दे दें, अल कुरान अकेडमी को दे दें, यतीम खाने को दे दें, कन्वर्टेड को दे दें, सैयदादियों को कपड़े लेकर दे दें, यतीम बच्चों की कफालत कर लें। मैं आपकी खिदमत फी सबीलिल्लाह करने को तैयार हूँ। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, मुझे भी अपनी दुआओं से फरामोश न कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कल 1 बजे जुमा की नमाज के खुतबे के साथ हाजिरी होगी। कोशिश होगी कि कल आपकी खिदमत में ज़रूर एक आध प्रोग्राम किया जाए, अगरचे अर्ली कर लिया जाए, जैसे 3 से 4 कर लिया जाए, क्योंकि दूर जाना है निकाह पढ़ने। सैटरडे ऑफ होगा, मैं नहीं हूँगा, प्रोग्राम होंगे। संडे को सारा दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़ व नासिर।